Morning student, how are you? I hope you are doing good. So student, in my previous video we have already read about learn to use MS Access 2007. That introduction part we have already read. What is database? Database is a collection of related tables with data is called database. What is relational database management system? A relational base data is a collection of data items organized as a set of formally described table. So short form of the relational database management system is RDBMS. Database objects. These are the database object. Table. A table is a part of the database where the actual data is stored. MS Access stores the related entires in its row. This row is called a record, and each type of detail in a record is stored in its column known as a field. Query. A query is used to extract information from a database. जब भी किसी पर्टिकुलर पर्सन की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी या किसी पर्टिकुलर रो की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, सो हम वहाँ पे क्या करते हैं, छोटी छोटी क्वेरीज क्रिएट करते हैं. फॉर्म इज़ अ फिल इन द ब्लैंक शीट यू फील कम्प्लीटली बाय हैंड सच एज अ जॉब एप्लीकेशन. जैसा कि आपका स्कूल के लिए एडमिशन फॉर्म होता है, ठीक वैसे ही MS Access पे फॉर्म क्रिएट किया जा सकता है. फॉर्म क्या होता है? फिल इन द ब्लैंक शीट दैट यू कम्प्लीटली फिल्ड बाय योर हैंड. Report. So just as a form are designed to be on screen, reports are designed to be print. जैसा कि आप लोग नॉर्मली किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए रिपोर्ट रेडी करते हैं, ठीक उसी तरह से आप MS Access में भी रिपोर्ट रेडी करके उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं. नाउ व्हाट इज़ MS Access? So student, you have already know about MS Word, MS Excel. So जिस तरह से MS Word and MS Excel MS Office का पार्ट होता है, ठीक उसी तरह से MS Office Access 2007 भी MS Office का ही एक पार्ट है, जिसे डिफरेंट टाइप के पर्पस के लिए MS Office के थ्रू डिज़ाइन किया गया है. So MS Access is used by the individual having small scale businessman with department of large corporation, also used by the hobby programmers to create customized system for handling the creation and manipulation of the डेटा. सो बड़े बड़े बिजनेसमैन्स या बिजनेस पर्पस के लिए भी MS Access ऑफिस का यूज़ किया जा सकता है. इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस द डेटा इज़ अरेंज इन द फॉर्म ऑफ टेबल. और MS Access में जो डेटा होता है उसे टेबल्स के फॉर्म में ही अरेंज किया जाता है. जो भी डेटा होगा टेबल्स के फॉर्म में अरेंज होगा, जस्ट लाइक योर अटेंडेंस शीट. जो क्लास टीचर आप लोग का डेली अटेंडेंस लेती है ना, वो डेटा टेबुलर फॉर्म में होता है. सिमिलरली MS Access में इसी तरह से डेटा प्रिपेयर किया जाता है. Now these are the steps how to start MS Access 2007. So first you have to go start button, then all program, after that Microsoft Office, then Microsoft Office Access 2007. उसके बाद आप पहुंच जाएंगे Microsoft Office Access 2007 की तरफ और आपको इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. दैट मीन्स कि आपने Microsoft Office Access को एक्सेस कर लिया है. So these are steps to creating database by using template. These steps we have already read in my previous video. So in this video we are going to learn about table structure. The table structure indicate what kind of table has to be created. A table structure identify the name, size and the type of various field. सो टेबल स्ट्रक्चर इंडिकेट करता है कि हम किस तरह का डेटा वहाँ पे प्रिपेयर करने वाले हैं. और जो टेबल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो उसके नेम, साइज और टाइप से आइडेंटिफाई किया जाता है. अ टेबल स्टोर वेरियस टाइप ऑफ डेटा. टेबल में आप किसी भी तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं. द डेटा एंट्री वेरी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फील्ड इन अ टेबल. सम डेटा टाइप्स आर एज फॉलो. सो हम टेबल में डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा स्टोर करते हैं. तो कुछ डेटा अल्फ़ाबेट
के फॉर्म में होते हैं, कुछ डेटा नंबर्स के फॉर्म में होते हैं. सो इन डेटा को टेबल्स में एंटर कराने के लिए हमें इन डेटा टाइप्स की ज़रूरत होती है. लेट्स सी व्हाट आर द डेटा टाइप्स. सो हियर as you can see that text. The data type text contain letter, number and symbols. The numbers in a text field are considered as a text and cannot be used for calculation. The length of the text field varies. It contain combination up to 255 character. For example, a man, Vita 13 and A258297T. So इन द टेक्स्ट डेटा टाइप यू कैन स्टोर दिस काइंड ऑफ डेटा. आप यहाँ पे या तो नेम लिख सकते हैं, या तो आप अल्फ़ाबेट या नंबर्स का कोई कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. ठीक है. सो इस तरह का डेटा आप टेक्स्ट में प्रिपेयर कर सकते हैं, बट आप कोई भी कैलकुलेशन टेक्स्ट पे नहीं कर सकते. आप टेक्स्ट पे कैलकुलेशन परफॉर्म, यानी आप टेक्स्ट पे प्लस माइनस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. सो हियर आवर अनदर डेटा टाइप इज़ नंबर. The data type number contain numeric values. It does not accept letter or symbol except number. So as you can see that, for example, 46 2004 1989. So in number data type you have to type number only. ठीक है. वो किसी दूसरे वो अल्फ़ाबेट को सपोर्ट नहीं करेगा. सो आपको यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ही डालनी होती है. Our second data type is currency. The data type currency contains symbol for currency, decimal and comma wherever needed. For example, 100.45. सो आप करेंसी डेटा टाइप में इस तरह के डेटा वहाँ पे एंटर करवा सकते हैं. यानी अगर आपको टेबल में पॉइंट वाला डेटा चाहिए तो आपको फिर वहाँ पे करेंसी डेटा टाइप सेलेक्ट करना होगा. डेट एंड टाइम. The data type of date and time contain the data and time. Calculation can be made on this field. For example, here date has written. यहाँ पे देखो date लिखा हुआ है and time लिखा हुआ है. So date and time data type को आप यूज़ कर सकते हो date या time को mention करने के लिए. Next is memo. The data type memo contain long text with all kinds of data. For example, these. तो आप मेमो में एक सेंटेंस टाइप कर सकते हैं. मेमो डेटा टाइप आपको प्रोवाइड करता है कि आप यहाँ पे लॉन्ग सेंटेंसेस टाइप कर सकते हैं. नाउ येस एंड नो. The data type yes and no present only one of two values, that is true false और yes or no on off. तो ये यहाँ पे चूज़ करने का ऑप्शन देता है. अगर आप फॉर एग्जांपल एक फॉर्म फिल करें, आपको कॉलम है मेल और फीमेल. सो आप अगर मेल है तो आप पे मेल पे टिक करेंगे येस, और फीमेल है तो फीमेल पे टिक करेंगे. सो इस तरह के ऑप्शंस को टिक करने के लिए जो डेटा टाइप यूज़ होता है वो डेटा टाइप है मेमो. Now creating a table using design view. So in my previous video we have read how to create a table using datasheet view. Now in this video we are going to see how to create table using design view. So these are the steps how to create table using design view. So firstly you have to click create tab on the ribbon. Then step 2, click the table design. And step 3, type the field name column and the press tab key to move the data type column. Then arrow appears for the drop down list in the data type column. Click the arrow and select the data type according to your field name from the list. Press tab key and move the description column and type of description of the field. The description of the field is optional. Step 6, save the table after adding all fields by clicking save button on the quick access toolbar. The save as a dialog box appears. Type the table name and click OK button. So these are the steps how to create data sheet using design view. Now next is primary key. A table should have at least one field that has a unique value for each record. Student, जब भी आप एक
टेबल आप जब भी आप क्या करते हैं, एक टेबल रेडी करते हैं, एक डेटाबेस रेडी करते हैं सम ऑफ द इन्फॉर्मेशन के साथ। सो आप वहाँ पे देखेंगे सारे जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन होते हैं, उस इन्फॉर्मेशन पे पास कोई ना कोई यूनिक वैल्यू होती है, या तो उसका सीरियल नंबर यूनिक वैल्यू होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप स्कूल के लिए कोई डेटा प्रिपेयर कर रहे हो, सो आपने स्टूडेंट्स का नेम लिखा है, सो आपके पास एक यूनिक वैल्यू होगी जो हर एक स्टूडेंट के लिए अलग होगी। सिमिलर लाइक रोल नंबर, जो रोल नंबर होता है वो हर एक स्टूडेंट के लिए डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि आपका हो सकता है नेम सेम हो, आपका सरनेम सेम हो, मे बी पॉसिबिलिटी आपके फादर्स नेम सेम हो, है ना। सो यहाँ पे जो रोल नंबर होता है वो ऐसे यूनिक क्वांटिटी होती है, यूनिक वैल्यू होती है, जो हर एक स्टूडेंट्स के लिए क्या होती है, डिफरेंट होती है। सो इस तरह से जो डिफरेंट कॉलम होता है वो कहलाता है प्राइमरी की। सो अ टेबल शुड हैव एटलीस्ट वन फील्ड दैट हैज़ अ यूनिक वैल्यू फॉर ईच रिकॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल इन अ स्कूल डेटाबेस द रोल नंबर ऑफ ईच स्टूडेंट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच स्टूडेंट ऑफ इन अ क्लास। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सो प्राइमरी की नल वैल्यू को सपोर्ट नहीं करता। अ प्राइमरी की डज नॉट अलाउ नल वैल्यूज़ एंड मस्ट ऑलवेज हैव अ यूनिक वैल्यू। जैसे कि स्टूडेंट डेटाबेस में यूनिक वैल्यू है हमारी रोल नंबर। अ प्राइमरी की इज़ यूज टू रिलेट अ टेबल टू अ फॉरेन की इन अदर टेबल्स। So student, here are a difference between data sheet view and design view. These both are two way to create the table structure, and these are the difference between data sheet view and the design view. It display the view in a row column format which allow you to view other, enter or manipulate data. It display the view which allow you to enter names, data types and the description into your table. So it's a difference between data sheet view and design. After creating a table, now entering data, the data sheet view. To enter data into the table in data sheet view, type the value in respective field, press the tab key to move the next field to type value. When you press the tab key in the last field, the insertion point moves to the first field in the next line. सो आपने अपना डेटाबेस का टेबल रेडी कर लिया है। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे रिकॉर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट, आफ्टर क्रिएटिंग टेबल आपने डेटा एंटर कर दिया है, उसके बाद आपको MS एक्सेस में मैनिपुलेटिंग द डेटा ऑप्शन मिलता है। सो यहाँ पे आप मैनिपुलेट कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं? टू ऐड अ न्यू रिकॉर्ड, आप वहाँ पे एक नया कॉलम बना सकते हैं। टू ऐड अ न्यू फील्ड, आप वहाँ पे नए रो में एक नया रो भी क्रिएट कर सकते हैं। अपडेट अ रिकॉर्ड, आप अपने जो भी इंफॉर्मेशन से रिकॉर्ड इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है मे बी वो इंक्रीज़ हो गए, तो आप वहाँ पे बढ़ा दो कॉलम्स नंबर ऑफ़। और अगर आपके स्टूडेंट में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट स्कूल में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट डिक्रीज़ हो गए तो आप उनके नेम हटा सकते हो। नाउ डिलीट अ रो एंड कॉलम, और आपके पास ये भी ऑप्शन होता है MS एक्सेस में कि आप कॉलम एंड रो भी क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सो हियर आर सम MCQs, लेट्स रीड इट। अ प्राइमरी की डज नॉट अलाउ ब्लैंक वैल्यू, नल वैल्यू। जो प्राइमरी की होती है वो नल वैल्यू अलाउ नहीं करती है। प्राइमरी की में क्या होता है, एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, जैसे कि स्टूडेंट डेटाबेस में आपका यूनिक वैल्यू होता है रोल नंबर। सेकेंड, डेटा इज़ एंटर्ड इन अ डेटा शीट, जो डेटा है उसको किस में एंटर किया जाता है, डेटा शीट में। थर्ड, वाइल डिज़ाइनिंग अ टेबल ब्लैंक फील्ड इज़ ऑप्शनल। सो जब हम टेबल डिज़ाइन करते हैं तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन फील्ड होता है वो क्या होता है, ऑप्शनल होता है। नाउ रिलेशनशिप, समटाइम्स क्या होता है, हमें ना बहुत सारे जो टेबल्स हमें क्रिएट करने होते हैं। MS एक्सेस में हमें बहुत सारे यानी काफ़ी सारे हमें टेबल्स क्रिएट करने पड़ते हैं, और उन टेबल्स में ना काफ़ी सिमिलैरिटी होती है। फॉर एग्जांपल हम स्कूल के लिए डेटाबेस रेडी कर रहे हैं, सो हम हम सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड रख रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स का नंबर रखते हैं, ठीक है। लेकिन फिर सेकेंड टेबल में हमें स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट भी बनाना होता है। सो दोनों में कॉमन क्या है, स्टूडेंट नेम कॉमन है ना। सो हमें अगर ये जानना है
कि जो स्टूडेंट है जिसका एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नंबर आया, ठीक है, सो उस स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। अब कॉन्टैक्ट नंबर वाला तो मेरे पास दूसरा टेबल है, सो उन दोनों टेबल के बीच में हम रिलेशनशिप रेडी कर सकते हैं। और ये रिलेशनशिप रेडी करने के लिए यूज़ किया जाता है प्राइमरी की का। अ रिलेशनशिप वर्क्स बाय मैचिंग डेटा इन अ की फील्ड, यूजुअली अ फील्ड विद द सेम नेम इन द बोर्ड टेबल। सो हमारा जो स्कूल का टेबल है, मैंने जो स्कूल के लिए स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि जो प्राइमरी की होता है, ठीक है, प्राइमरी की डज नॉट सपोर्ट नल वैल्यू। प्राइमरी की में एक यूनिक वैल्यू होती है, ठीक है। तो आपके स्टूडेंट वाले डेटाबेस में वो यूनिक वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका रोल नंबर। सो हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप किस तरह से रेडी किया जाएगा। सो स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक टेबल रेडी किया हुआ है, एक टेबल बनाया है, ठीक है। इस टेबल पे मैंने क्लास 7th के स्टूडेंट का नाम लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्लास 7 के स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है। इस तरह से मैंने एक डेटा शीट यानी एक डेटाबेस रेडी किया है। नाउ मैं एक और टेबल रेडी करती हूँ। इस टेबल पे मैंने क्लास 7th के स्टूडेंट्स का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने उनका रिजल्ट लिखा है कि क्लास 7th का स्टूडेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने नाम लिखा रोहन, ठीक है। सो रोहन पास है या फेल, ठीक है। ऐसे ही मैंने डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स का नाम लिखा और उनका रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मुझे उन स्टूडेंट्स के घर कॉल करना है, ठीक है, जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए। अब मैंने क्या किया है, मैंने कॉन्टैक्ट लिस्ट का जो टेबल बनाया हुआ है वो दूसरी तरफ है। अब मैं इस टेबल को क्लोज़ करूँगी, मैं वापस उस टेबल की तरफ जाऊँगी और वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर निकालूंगी। सो ये क्या होगा मेरे लिए, इट्स क्वाइट बिल्कुल एकदम से बहुत सारा काम हो जाएगा, है ना। सो हम क्या करेंगे, मेरे उस कॉन्टैक्ट डिटेल वाले टेबल पे और हमारे रिज़ल्ट वाले टेबल पे क्या करेंगे, रिलेशनशिप, हम उनके बीच में रिलेशनशिप बनाएंगे। सो रिलेशनशिप बनाने के लिए क्या होता है कि दोनों टेबल्स के बीच में एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। तो दोनों टेबल के बीच में जो हमारा यूनिक वैल्यू है वो क्या है, स्टूडेंट नेम। तो हो सकता है जो हमारा स्टूडेंट का नेम है वो क्या हो, सिमिलर हो, यानी 2 स्टूडेंट्स का नाम हो सकता है कि वो रोहन झा हो, 2 स्टूडेंट का नाम रोहन हो सकता है ना। सो हम क्या करते हैं, सारे स्टूडेंट को रोल नंबर प्रोवाइड करते हैं, है ना, क्योंकि रोल नंबर जो होता है वो सारे स्टूडेंट का डिफरेंट होता है, किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता। सो हमारा यहाँ पे जो यूनिक वैल्यू है वो क्या है, रोल नंबर। सो इस रोल नंबर का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप उन दोनों टेबल के बीच में फॉर्म कर सकते हैं। सो हियर आर द स्टेप हाउ टू फॉर्म रिलेशनशिप बिटवीन 2 टेबल। सो दीज आर द स्टेप। सो आप लोग ये स्टेप एक बार रीड करिए कि किस तरह से रिलेशनशिप फॉर्म किया जा सकता है 2 टेबल्स के बीच में। नाउ हाउ टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस। सपोज़ आपने डेटाबेस रेडी कर लिया, आपने उस पर वैल्यूज़ भी एंटर कर दिए, आपका सारा काम हो गया। नाउ आप अपने डेटाबेस को किस तरह से ओपन करेंगे। सो दीज आर द स्टेप्स टू ओपन डेटाबेस। सो फर्स्ट क्लिक ऑफिस बटन, ओपन ऑप्शन, देन ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर। तो आपको इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। स्टेप 2, लुक फॉर दी फोल्डर वेयर द डेटाबेस इज सेव्ड। सो आपको यहाँ पे देखो फोल्डर्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, आपको यहाँ पे देखना है कि आपने किस फोल्डर पे डेटाबेस को सेव किया है। सेलेक्ट द रिक्वायर्ड डेटाबेस टू ओपन एंड क्लिक द ओपन बटन, देन सेलेक्ट द डेटाबेस टेबल टू गेट ओपन। देन आपको वो टेबल सेलेक्ट करना है और आपको फिर जो आपका डेटाबेस आपने बनाया था वो वहाँ पे ओपन हो जाएगा। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ योर वीडियो। आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, हाउ टू यूज़ MS Access 2007। सो आई होप you all understood. Okay student.